हालेलुया। मैं खुदा के बंदा एसीएम मिनिस्ट्री के सीनियर चेयरमैन पास्टर मानव सोत्रा साहब को अपनी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ। लोगों को खुदा के कलाम को खुदा के हर संदेश को बयान करने मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आपकी मोहब्बत का, पसंदीद और उसकी टीम का। आए खुदावन के कलाम में से देखें, वैसा निकालिए खरूज की किताब, जिनके पास किताब मुक़द्दस है, खरूज की किताब निकालिए और उसका 23वां बाब है, बुक ऑफ एक्सोडस chapter 23 verse 25 and 26। खरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत मुक़द्दसा हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मैं आप सब के लिए पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसरात होगा और ना कोई बाँझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। अब बता सकते हैं कौन सी किताब में से हमने पढ़ा? मुझे वहां से पूछने दे कौन सी बात है। मैंने इसलिए कहा था कि आप गौर से सुनिए। लिखा है कि ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। तो अगर आप सुनेंगे नहीं तो जैसे खाली आए हो वैसे खाली चले जाओ। अब आप सब मेरे पीछे इसको याद करें, जो अनपढ़ है वो भी सुने। खरूज उसका 23 बाब, उसकी 25 और 26 दो आयत मुक़द्दसा हम पढ़ेंगे। आमीन। अब कौन सी किताब का जिक्र किया मैंने? यस, आमीन। आपको याद रहेगा। अब आप मेरे पीछे पढ़ेंगे इसको। और तुम खुदावन अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसरात होगा और ना कोई बाँझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आमीन। एक बार मैं इसको रीड करूंगा इंग्लिश बाइबल में, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। Now I'm going to read book of Exodus chapter 23 verse 25 और 26। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, Here is written, You shall serve Jehovah your God, and He will bless your bread and your water, and I will take your sickness away from your midst. No one will miscarry or be barren in your land. I will fulfill the number of your age. के कलाम के वसीला से खुदा की बरकत आए। सो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमने जो खरूज की किताब में पढ़ा है, खुदा ये कह रहे हैं कि एक काम तुमने करना है और काम मैं नहीं करनी है। हमारे स्कूल में एक लगाया गया है, ये चर्च उस काम के लिए बना है। हमें कौन सा काम करना है? उसकी इबादत करनी है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये कोई मुश्किल काम नहीं है इबादत करना। हमारा काम क्या है?
خدا کی عبادت کرنا that's very simple worship to God. اور 5 major کام 5 things big things God will be do. ہمارا خدا 5 مشکل ترین کام کرنے دیا ہے. ہلیلویا. ایک کام ہمارا ہے اور 5 کام خدا کے ہیں. ہمارا ایک کام ہے اور خدا کہتا ہے تو ایک کام کرنا, صرف میری عبادت کرنا, اور 5 میجر کام جو تیرے بس میں نہیں ہے, جو تیرے بس میں نہیں, وہ میں کروں گا. ہلیلویا. 5 کام جو تیرے بس میں نہیں ہے, برکت لانا ہمارے بس میں نہیں ہے, شفا دینا ہمارے بس میں نہیں ہے, 5 کو بچوں والی بنانا ہمارے بس میں نہیں ہے, مسکریج ہو جانا, بچے ضائع ہو جانا, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, اور ہماری عمر بڑھ جائے یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمارے بس میں ایک کام ہے, زندہ خدا کی عبادت کرنا. 5 میجر کام جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہمارا خدا کرے گا. ہلیلویا. وہ ہمارا خدا کرے گا جو کام ہم نہیں کر سکتے. نمبر ہے تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے آج خاندانوں کے اندر. اور میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ جو جھوٹے لائے دیتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں آپ کے سامنے آ کر, وہ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان, جبکہ وہ دیتے نہیں ہیں. جو جھوٹ بول دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ کر روٹی کپڑا مکان دیتے نہیں ہیں. لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں, فالتو ٹائم ہے ان کے پاس. لیکن تیرا خدا جو تیری روٹی پر برکت دے سکتا ہے, اس کے پاس نہیں آتے. جھوٹ کے پیچھے, جن کی زندگی جھوٹ پر مبنی ہے, ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں, جھوٹے نعرے لگاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن جو خدا سب کچھ کر سکتا ہے اس کے پیچھے نہیں آتے. مجھے بتاؤ روٹی کپڑا مکان کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح کے پاس ہے. روٹی کپڑا مکان یسوع مسیح کے پاس ہے. اور دنیا کی کسی طاقت کے پاس, کسی دنیا میں, اس دنیا میں کسی کے پاس روٹی اور کپڑا مکان نہیں ہے. روٹی اس کے پاس ہے, پھر روٹی کے اوپر برکت دینا اس کے پہلا کام جو ہمارے گھرانوں کے اندر المیہ بن چکا ہے. ہم کہتے ہیں بہت کماتے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی جاتا کہاں ہے. ہم بہت کماتے ہیں, بہت کرتے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آتی جاتا کہاں ہے, کیونکہ وہ عبادت کے بغیر ہے. برکت کا وعدہ عبادت کے ساتھ ہے. سنیے غور سے, جو عبادت نہیں کرتے, عبادت میں آ کر بھی عبادت نہیں کرتے, لکھا ہے کہ وعدہ کس کے ساتھ؟ عبادت کے ساتھ. یہ وہی خدا ہے جو ابتدا میں تھا, اور اس نے خروج کی کتاب میں کہا کہ تو میری کیا کر, عبادت کر. بس عبادت کر, تیرا کام عبادت کرنا ہے, باقی کام مجھ پر چھوڑ دے. اور جب یسوع مسیح دنیا میں آئے تو انہوں نے آ کر کہا مت سوچ کہ تو کیا پہنے گا, مت سوچ کہ تو کل کیا کھائے گا. ان فکروں میں غیر قوم والے رہتے ہیں. دیکھ ہوا کے پرندوں کو دیکھ, نہ بوتے ہیں, نہ کاٹتے ہیں, نہ کوٹھڑیوں میں جمع کرتے ہیں.
तेरा आसमानी बाप उनको भी खाने को देता है। हालेलुया। तू काहे की फिक्र में है? फिक्र इसलिए है कि तू इबादत नहीं करता। हम एक दिन चर्च में आकर इतवार के दिन आसान कर देते हैं खुदा पर। इबादत हर रोज की है, हर लम्हे की है। ताबेदार हो जाओ उसके और उसकी पूरी इबादत करो। एवरी डे, हर रोज, एवरी नोन, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, हर वक्त, ऑल द टाइम वी विल बी वर्शिप टू गॉड। हमें खुदा की इबादत करनी होगी, तब जाकर वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। अब गौर से सुनो, पहले पॉइंट पर मैं अभी आखिरी बात करने वाला हूं। तेरा खुदा वो है जब अपने लोगों को भूखा देखता है तो आसमान से मन बरसाना शुरू कर देता है। आसमान की दरीचे भी खोल देता है, आसमानी मन आता है और वो अपने लोगों को सेव करता है। और जब जमीन पर उतर आता है तो इंसानी सोच कहती है, सुनिए, 5 रोटियों और 2 मछलियों से इतना बड़ा हजूम कैसे खा सकता है? जब वो जमीन पर आता है तो जब उसने इंसानों को देखा तो इंसान की सोच भी वहां पर यही थी कि 5 रोटियां और 2 मछलियों से इतना बड़ा हजूम खुदावन कैसे खाएगा? लेकिन वो यहां पर भी ये कहता है, डोंट वरी, मैं हूं। और मैं आज उनको ये बताना चाहता हूं जिनकी सैलरी कम है। वो कहते हैं 15,000 में हमारा खानदान नहीं पलता, हमारा खानदान 10,000 में नहीं पलता, हमारा खानदान 20,000 में नहीं पलता। समझ नहीं आती तो सुनो गौर से, तेरा खुदा तो वो है जो 5 रोटियों 2 मछलियों से 5,000 से ज्यादा को खिला सकता है। अरे 5, 10, 20,000 में तेरे घर के 5 लोगों को कैसे नहीं पाल सकता? पाल सकता है, लेकिन तूने कभी दिल से उसकी इबादत नहीं की। तेरा दिल तो इबादत में आकर भी किसी और जगह पर लगा रहता है। दिल से, पूरे दिल से, आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से उसकी इबादत कर। वो कहते हैं 5 बड़े काम जो तू नहीं कर सकता वो मुझ पर छोड़ दे। हालेलुया। 5 बड़े काम, मेजर काम वो मुझ पर छोड़ दे। नंबर 1 क्या है? रोटी और पानी पर ये खुदा कर सकता है, उसका वादा है यहाँ पर, वो कर सकता। उसने कहा है ये मेरा काम है, लेकिन तेरा काम जो है तू अपना काम कर और मुझे अपना काम नहीं। खुदा कहते हैं मेरे काम में टांग नहीं उड़ा। हम अगर फिक्र करते हैं खाने की तो समझो खुदा के काम में टांग उड़ाते हैं। यस, क्योंकि खुदा कहता है तू अपना काम कर और तेरा काम क्या है? उसकी इबादत करना। बस फिर देख वो तेरे पैसे को कैसे ब्लेस करता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, तेरे बीच में बीमारी नहीं रहने दूंगा। हम खुदा को देना पसंद नहीं करते, लेकिन उधार उठाकर डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं। हर रोज 50 रुपए डॉक्टर को ब्लड प्रेशर चेक करवाने के दे देते हैं, लेकिन जब चंदे की बारी आए तो फिर ढूंढते हैं 10 रुपए कौन से मुंह करने पड़े होंगे। उसको ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए हर रोज 50 रुपए दे आते हैं। कई भाइयों बहनों का ब्लड प्रेशर भी लेवल नहीं होता, वो डाउन रहता है। डेली चेकअप, एवरीडे चेकअप। मैं सही कह रहा हूं? अरे कोई 50 रुपए उसको दे दे, खुदा की जोड़ी में क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। हालेलुया। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करने वाला है? ये वही खुदा है जिसने इब्तिदा में आदम और हवा को बनाया। और मैं ये कहता हूं कि दुनिया का पहला सर्जन जो बड़ा डॉक्टर है वो हमारा खुदा है, जिसने
आदम का ऑपरेशन करके बीच में से हवा निकाल ली और फिर उसको वैसे का वैसा कर दिया। हालेलुया। ये डॉक्टर कहां से आया? ये डॉक्टर कहां से आया? इसलिए कि तेरा खुदा पहला डॉक्टर है, पहला सर्जन है। इसलिए कहता है तेरे बीच से बीमारी क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। हालेलुया। पहला सर्जन हुआ है जो ऑपरेशन करता है, सीधा देता है। मेरा एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल में मैंने 6 साल तक जॉब किया, ऑपरेशन थिएटर में रहा मैं। तो मरीज का ऑपरेशन करने से पहले उसको बेहोश किया जाता था, फिर उसको ऑपरेट किया जाता है। तो आदम को पहले खुदा ने क्या किया? जब हवा निकाली उसको गहरी नींद यानी बेहोश कर दिया उसको, फिर उसका ऑपरेशन किया। तो ये सेम थिंग है। ये डॉक्टर का जो सारी ये कह लें डॉक्ट्रेन है, ये सारी वहां से निकली है। इसलिए वो अब भी मरीज को क्या करते हैं? बेहोश करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। तो क्यों ही उसके पास आते जो बगैर ऑपरेशन के पत्थरियों को भी निकाल सकता है। हालेलुया। बगैर ऑपरेशन। हमारे भाई थे पेशावर में और एक माह में 4 बार उसके गुर्दे वाश होते थे, 4 बार। तो उसने मुझे कॉल की और रोना शुरू कर दिया। उसने कहा भाई मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर कहते हैं कि अब यही होगा तेरे साथ, हर माह तेरे गुर्दे वाश हुआ करेंगे, हफ्ते में 1 बार, बस ये करवाता जा और तू जिंदा रहेगा। मैंने उसे कहा डोंट वरी मेरे भाई, हमारा खुदा तो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। और मैंने जब उसके लिए दुआ की, खुदा ने मुझे आंसू दिए, मैं आंसू के साथ उसके चलाना शुरू किया। मैंने कहा खुदा आज मनीर का ऑपरेशन कर दे और इसके गुर्दे नए कर दे। अब सुनो, बड़ी खास बात करने वाला हूं मैं। जिस्मानी तौर पर जो चीज जो कंपनी बनाती है उसके पार्ट्स उसके पास क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अगर गाड़ी बनाने वाले गाड़ी बनाते हैं, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, करोला, तो उसके पार्ट्स उनके पास एक्स्ट्रा वो रखते हैं। कोई पार्ट जब खराब हो जाए तो उसको क्या करते हैं? तब्दील कर देते हैं। तो हमें किसने बनाया है? तो खुदा के स्टोर में आप सबके पार्ट्स मौजूद हैं। रिमेंबर दिस, इसको याद रखिए, आप सबके पार्ट्स आसमान पर मौजूद है। जब वो एग्री कर लेता है, हमारी दुआ सुन लेता है, तो वो आसमान से फरिश्तों को भेजता है, वो अपने औजार लेके आते हैं और ऑपरेशन करके वो नया गुर्दा या दिल डालकर फिर चले जाते हैं। हालेलुया। तो मनीर के खुदा ने गुर्दे नहीं कर दिए, अब उसका कभी गुर्दावाश नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ने उसको चेंज कर दिया है। क्योंकि हमारा खुदा दुनिया का पहला सर्जन है। मैं बिलीव रखता हूं उस पर। I believe on him. He is a big surgeon. He is the first surgeon. हमारा खुदा दुनिया का पहला सर्जन है जिसने ऑपरेट किया। और जब वो जमीन पर यीशु के रूप में आता है, तो एक जगह हम देखते हैं कि जब मसीहा जा रहे हैं और एक अंधा शख्स राह के किनारे बैठकर भीख मांग रहा है, वो यीशु मसीह को देके चलाया। यीशु ने उसे कहा क्या चाहता है? उसने कहा मैं चाहता हूं मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने जमीन पर थूका, मट्टी सानी और वो मट्टी उसकी आंखों पर रख दी। अब मुझे बताएं, अगर यीशु मसीह उसे खड़े होकर दूर से कह देते कि जा तेरी आंखें खुल जाएं, तो क्या आंखें नहीं खुल सकती? जो यीशु लाजर से कहता लाजर कब्र से
बाहर आ जा। क्या वो खड़े होके कहता जा जा तेरी आंखें खुल गई? बट यीशु मसीह वहां पर कुछ साबित करना चाहते थे। यीशु मसीह वहां पर साबित करना चाहते थे, क्योंकि तारीफ ये कहती है कि उस शख्स की आंखें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और यीशु ने मट्टी इसलिए सानी और मट्टी सान कर उसकी आंखों पर रखी, ताकि वो शख्स जान जाए, दुनिया जान जाए कि मैं वही हूं जिसने मट्टी से आदम को बनाया था। मैं आज की मट्टी से नई आंखें बनाने की कुदरत रखता हूं। मैं वही हूं जिसने मट्टी से आदम को बनाया था, और मैं चार तेरी आंखें फिर नई गूंद कर लगा देता हूं। हालेलुया। उसके पास आओ, उसे देना शुरू करो जो आपका डॉक्टर है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आई एम वेरी सीरियस टॉकिंग। मैं बहुत खास और सीरियस बातें कर रहा हूं आपके साथ। ये जरूरी अमल है कि आप उसकी क्या करो? इबादत करो, और वो ये काम करने के लिए कादिर है। हालेलुया। और उसने जमीन पर आकर इस बात का सबूत दिया कि मैं हमेशा यकसा हूं, मुझ में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। मैं कल, आज, बल्कि अब तक एक जैसा यकसा। यीशु बड़ा है। मसीही तो ऐसे जिंदगी गुजारे हैं जैसे यीशु में कोई पावर नहीं है। ऐसे मासूम, यतीमों की तरह, जैसे इनका भाव भी नहीं होता, यतीमों की तरह। दुनिया में हम ऐसे फिरते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। बट वाई? क्यों? इसलिए कि हमें अभी तक पता नहीं चला कि बादशाहों का बादशाह हमारा बाप है। इसलिए that's why, इसलिए हम आज भी यतीमों की तरह इस मुआशरे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। काश आपको इल्म हो जाए कि तेरा खुदा वो है जो बादशाहों का बादशाह है, खुदाबंदों का खुदा है। तो यीशु मसीह जमीन पर आकर साबित करना चाहते थे कि मैं वही खुदा हूं जो इब्तिदा में था और आज भी आंखें नई बनाने की कुदरत रखता हूं, कुर्ते नए बना देता हूं, मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। तो तेरा ब्लड प्रेशर, मेरी भाई मेरी बहन, क्या बात करती, क्या बात करता है तू? ब्लड प्रेशर लेके भाग रहे डॉक्टरों के पास, आ जाए यीशु के पास, वो ब्लड प्रेशर को बिल्कुल लेवल कर देगा। हालेलुया। गुजरावाला के अंदर एक बहन है जिसकी शुगर 800 पे चली जाती थी, 800, 700, और उन्होंने मुझे कॉल की कि ये लेवल पे नहीं आ रही। पिछले 1 साल से वो इंसुलिन लेती थी, 300, 400 इंसुलिन, लेकिन हमने उसके लिए दुआ करना शुरू की और खुदा के फजल से 800 से नीचे आके अब वो 200-250 पर आकर ठहर गई। हालेलुया। क्योंकि यीशु अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छा तबीब है, वो तबीब आज़म है जो सब डॉक्टरों का डॉक्टर है। कम ऑन, उसके पास आओ, क्योंकि वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। नंबर 3 क्या है? नंबर 3, यस, कम ऑन, इस्कात। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिसकैरेज। तेरे बच्चे जाया नहीं होंगे। अलमिया है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, बहुत सारे लोगों की शादी होती है और बच्चे जाया हो जाते हैं। खुदा कहता है ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन ये वादा भी इबादत के साथ है। हालेलुया। ये वादा भी इबादत के साथ है। इस वादे को भी ले लो।
पास्टर जुबेद खुशी यहाँ पर बैठे, कदमों पर खड़े होंगे। पास्टर जुबेद खुशी के चर्च में एक बहन आती थी, वो अपने 3 बच्चे खो चुकी थी, 3 बच्चे इस दुनिया से चले। तो वो हॉस्पिटल गई, पेम्स हॉस्पिटल गई कॉम्प्लेक्स में। तो एक सिस्टर ने उसे कहा, कौन से चर्च जाती है? उसने कहा, मैं किसी चर्च नहीं जाती। उसने कहा, जा, सुनिए गौर से, मेरी तरफ देखिए। उसने कहा, जा किसी खादम से दुआ करवा, ये तेरा मिस कैरेज खत्म हो गया। मेडिकल से ताल्लुक रखने वाली बहन, एक स्टाफ ने उसे कहा, जाकर दुआ करवा, ये जो बीमारी है ये डॉक्टरों के बस की नहीं है। तो वो भाई की चर्च आई और भाई दुआ रोजे में ठहर गए। आज कितने बेटे हैं उसके? 3 बेटे खुदा ने दिए आज। वो सलामत है, हालेलुया। वो सलामत है, वो ठीक है। वो 3 बच्चे जाया कर चुकी, खो चुकी थी अपने बच्चे, लेकिन जब उसने इबादत करना शुरू की तो क्या हुआ? खुदा ने फिर उसको 3 बेटे दिए, आज वो सलामत है। ये भी वादा किसके साथ है? इबादत के साथ। तो मेरी क्या कर? इबादत कर। नंबर 3 मैं जल्दी करना चाहता हूं, बहुत थक चुके हैं आप। अब 4 नंबर क्या है? बांझ नहीं रहेगी। खुदा कहते बांझ, और खुदा के कलाम लिखा है कि वो खुदा है जो बांझ को बच्चों वाली बना देता है। ये किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है, नो सॉरी फॉर दैट। ये किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं, ये मेरे खुदा के पास है। और उम्र का तकाजा भी नहीं इसमें। सारा 90 साल की हो गई और मेडिकल साइंस ये कहती है 50 साल से ऊपर औरत चली जाए तो वो मां नहीं बन सकती। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा वो है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है, जो उम्र का तकाजा नहीं करता। डॉक्टर तो उम्र का तकाजा करते हैं, लेकिन हमारा खुदा जो तबीबे आजम है वो उम्र का तकाजा नहीं करता। सारा और इब्राहिम 100 साल के करीब चले गए और फिर खुदा ने फर्जंद नरीना बख्श दिया। हालेलुया, इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया, 100 साल की उम्र में। और ये वादा किसके साथ है? इबादत के साथ। नंबर 4, बांझ नहीं होगी। हालेलुया। नंबर 5 क्या? तेरी उम्र पूरी करूंगा। यस, खुदा कहता है तेरी उम्र पूरी करूंगा। इसका मतलब है कि कम उम्र में भी लोग मर जाते हैं। खुदा कहता है मैं तेरी उम्र क्या करूंगा? खुदा ने 120 बरस उम्र मुकर्रर की है। कितने बरस? 120। हमारे माशरे में लोग 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, बचपन में मर जाते हैं। दिस इज नॉट गॉड प्लान। ये खुदा का मंसूबा नहीं है। सॉरी, खुदा ने जो उम्र मुकर्रर की है, खुदा चाहता है उस उम्र तक हम पहुंचे। तो मर्दे खुदा की, दाऊद की ये दुआ है, 70 बरे कुव्वत हो तो फिर 80 बरस। 70 बरस कुव्वत हो तो 80 बरस। कम से कम 70 या 80 साल हमें इस दुनिया में जीना है। कौन सी बात है? अगर जमीन पर किसी की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो क्या खुदा चाहता है कि बच्चों को यतीम कर दे और उस शख्स को उठा ले? नो। खुदा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देता है जमीन पर। किसी को मां बनाता है, किसी को बाप बनाता है, किसी को भाई, किसी को बहन,
किसी को शौहर और किसी को बीवी बना देता है, और ऐसा नहीं चाहता। लेकिन सबब क्या है? हमारे गुनाहों के सबब से मेरी बहन मेरे भाई, दिस कॉज आवर सिन, ये हमारे गुनाह के सबब से है, हमारे गुनाह के सबब से, हमारी खुदाओं के सबब से हमारी जिंदगी के अयाम कम होते जाते हैं। खुदा नहीं चाहता, खुदा तो चाहता है कि जो इंसान दुनिया में आता है वो अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करके फिर इस दुनिया से रुखसत हो, फिर जाए। लेकिन हम तो अधूरी जिंदगी छोड़कर चले जाते हैं। ये गुनाह का सबब है। खुदा कहता है मैं तेरी उम्र क्या करूंगा? पूरी करूंगा। तो ये वादा किसके साथ है? इबादत के साथ। ये वादा भी इबादत के साथ है। मेरा दिल मुझे जोर दे रहा है कि मैं जल्दी करूं और आपके लिए दुआ करूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर और आपको सुनना होगा। सुनिए गौर से। हमारा खानदान खुदा से दूर था। मेरा बाप, मेरा दादा जो है वो नूरी काला इल्म पढ़ता था, और मुझसे बड़े मेरे 4 भाई जिनकी डेथ हो गई, 4 भाई। और मेरी वालदा अब भी मुझसे कभी कभी कहती है कि जब तेरे भाई कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 13 साल का होता था तो समझ ही नहीं आती थी, चलते चलते गिरा और मर गया। एक बहन, क्योंकि खानदान दूर था। इबादत नहीं करते थे, जादूगरों के पास जाते थे। लिखा है गैर मबूतों के पीछे भागने वालों के हम। तो मेरा बाप सर में खाक डालता था, बाजारों में बैठकर काम नहीं किया करता था। कहता मैं किसके लिए काम करूं? जब कोई मेरा बच्चा बचता ही नहीं है तो मैं काम किसके लिए करूं? तो किसी खुदा के बंदे ने एक दिन जब वो हमारे घर आया, खुदा का खादम, तो उसने मेरी मां से कहा कि खुदा के साथ कमिटमेंट कर लो। अब जब तेरा बेटा हो तो उसका नाम अमानत रख देना और कहना ये खुदा की अमानत है और ये आपके सामने खड़ा हुआ है। जब खुदा के साथ कमिटमेंट हो जाए तो वो कहता है फिर तेरी उम्र क्या करूंगा? पूरी करूंगा। ये प्रैक्टिकल हुआ है हमारे खानदान के अंदर, हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल हुआ। हम अब 6 बहन भाई हैं और खुदा के फजल से हम सब खुदा की खिदमत में हैं, और खुदा ने हमारी उम्रों को पूरा करना शुरू कर दिया है। पास्टर एहसान इधर है, वो मेरा भाई है, छोटा भाई है। एहतशाम ये खड़ा है, ये छोटा भाई। हम खुदा की खिदमत में, हम कमिटेड हो चुके हैं खुदा के साथ, और खुदा ने भी कहा कि अब उम्र कम नहीं होगी बल्कि आपकी उम्र क्या होगी? पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा कादिर खुदा है, और जब उससे दूर चले जाओगे तो फिर उम्र पूरी नहीं होगी, कम उम्र में मर जाओगे। खुदा कहता है जो शख्स दुनिया में आता है 70-80 बरस वो जिंदगी गुजारे और बच्चों की शादियां करे, उनके बच्चे देखे। लिखा है सादिक अपने बच्चों के बच्चे देखेगा, सादिक अपनी औलाद की औलाद भी देखेगा। और दुनिया में कहावत है कोई जब अधूरा काम छोड़कर जमीन पर चला गया, हम कहते हैं अरे 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 अभी इसका बहुत काम था, कुछ अभी बेचारे ने देखा क्या है। खुदा भी ये चाहता है हम देखें, हम अपनी औलाद की खुशियां देखें, हम अपने बच्चों की खुशियां देखें, फिर हमारी बरकत हमारे खानदान में जारी होगी जब हम इबादत करेंगे। हालेलुया।